Two particles start simultaneously from the same point and move along two straight lines. One with uniform velocity v and other with uniform acceleration a. If alpha is angle between the lines of motion of the two particles, this uniform velocity, this is going with acceleration a. Two particles start simultaneously from same point, move along two straight lines, one with uniform velocity, other with uniform acceleration. If alpha is the angle between the lines of motion of the two particles, alpha, then least value of relative velocity will be given by any of these expressions. What we are supposed to find out? Relative velocity. So हम लोग relative velocity का expression निकालेंगे और उस relative velocity के expression की minimum value की क्या condition है उसको हम निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? Least value of relative velocity. तो relative velocity फिर उसकी least value. Okay. So first we will find out their relative velocity. एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन 0 है और इसके पास एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना? तो आंसर है रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हम निकाल सकते हैं. किस तरह से? इसमें देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हम दो डायरेक्शन में निकालेंगे. एक x डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी और एक y डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी. उसके बाद दोनों का सम करेंगे, एडिशन करेंगे, दैट विल गिव द टोटल रिलेटिव वेलोसिटी. और वो जो एडिशन आएगा उस रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू लीस्ट कब होगी उसको निकाल लेंगे. ओके. सो एट एनी टाइम t, at any time t, v has got two components and according to that we will find out relative velocity. So relative velocity in x direction will be velocity of v in x direction, that is velocity of v in x direction minus this velocity at time t is equal to u plus at. u plus at. Okay. Now here this starts with acceleration and its initial velocity is 0, so we'll put it 0. Okay. This is in x direction. Then relative velocity in y direction. Relative velocity in y direction. This is velocity in y direction minus velocity of this particle in y direction, that is 0. Because it is already in one direction, we have taken it as x direction. We have taken it as x direction and this we have taken it an angle alpha according to the numerical given. Okay. So this is Vx and Vy. Now what will be the total relative velocity? Net relative velocity. अगर हमको एक ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी दी गई हैं तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकाल के. So that will be net relative velocity. This will be equal to root of a square plus b square. Because these two velocities what we have formed. This Vx, relative velocity in x direction, relative velocity in y direction. So we can always find out relative velocity as resultant of the two. Okay.
this is Vx and Vy. Relative velocity, this is also relative velocity. Okay, these are all in x and y. I don't say that it is going like this or this, this or this, whatever it is. It just may be in this direction, this may be in this direction. Okay, so net relative velocity at time t will be given by summation of the two, and summation of the two is Vx minus At square plus Vy square. Okay, so this is relative velocity. The value of relative velocity, sorry. The value लीस्ट कब होगी? तो आंसर है ये वैल्यू लीस्ट तब होगी जब कोई भी a दोनों का प्लस हो रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये तो कांस्टेंट है। ये जब लीस्ट होगा तो ये वैल्यू लीस्ट होगी, और ये कब लीस्ट होगा, ये लीस्ट कितना होगा? तो आंसर है कि ये लीस्ट कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 वैल्यू अगर इसकी होगी तो हमारे को कंडीशन क्या मिलेगी? v in the x minus at should be equal to 0, and vx, v in the direction x is v cos alpha equal to at. So t is equal to v upon a into cos alpha. This is the condition. अगर t इसके बराबर हो गया तो vx minus at should be 0, और अगर ये 0 हो गया तो vr की वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। उसके लिए टाइम कितना चाहिए? v अपॉन a cos अल्फा, क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये जो x कंपोनेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट, ये धीरे होता जाएगा, ये कम से कम वैल्यू पे जब पहुंचेगा तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए वैल्यू सिर्फ x कंपोनेंट पर डिपेंड करेगी, और ये x कंपोनेंट की मिनिमम होने की कंडीशन। सो दिस इज आवर आंसर, t is equal to v upon a cos alpha this. So our option is B. So this is the correct answer. Okay, now we go to the next question. Speed time graph approaching each other is shown in the figure. Initially distance between them is 60 meter. The two cars will cross each other. दो कारें जो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, कब क्रॉस करती हैं? हम लोगों को उसका इक्वेशन मालूम है, उसका तरीका मालूम है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। और जब एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज v1 माइनस v2, दैट इज v1 प्लस v2। दोनों की स्पीड को जोड़ देने से रिलेटिव वेलोसिटी आती है। तो हमको दोनों की स्पीड को एडअप करना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम दूसरा है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। यहां देखिए, इसकी स्पीड 20 है, और 20 से जैसे जैसे टाइम बीतता है स्पीड कम होते जा रही है। और पहले की स्पीड, इसकी A की स्पीड शुरू में 0 थी, ये स्पीड बढ़ते जा रही है। इसकी स्पीड शुरू में बहुत ज्यादा थी, ये कम होते जा रही। तो वो जो हमारा फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर्मूला तो ठीक है, पर रिलेटिव वेलोसिटी जो थी v1 प्लस v2 नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? दैट इज ए वेरिएबल टर्म। यहां पर दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटीज नहीं है, इसलिए हम उनकी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसमें निकालना तो है रिलेटिव वेलोसिटी,
तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ओके, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. एट एनी टाइम टी, क्योंकि ये वेरिएबल है. एट एनी टाइम टी ए की वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 और 4 सेकंड में ये वेलोसिटी हो जाती है 4. तो 4 सेकंड में ये वेलोसिटी हो जाती है 0. फॉर ए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, time t is equal to 4. Then u v t you can always find out that a is equal to v minus u upon t, so this comes to minus 5, retardation of 5. ठीक है, this is for acceleration of body A. Similarly, acceleration of body B you can find out by the same method. For B, acceleration of B is equal to plus 5. Now, when they meet here, how much distance? Let us say the time passed is t. After t time, they meet each other. If they meet each other after time t, then how much distance is covered by A? Distance by A. हमको कुछ ना कुछ इसका तरीका सोचना पड़ता है. तो हमने ये सोचा कि जब ये यहां पर मिलेंगे, दोनों ने स्टार्ट एक ही टाइम पर किया है, मिलने का एक टाइम है, तो क्या चीज दोनों में कॉमन है? टाइम. जितनी देर तक ये चला उतनी देर तक ये चला और पूरा डिस्टेंस कवर हो गया. ये पूरा डिस्टेंस है कितना, ये भी हमको पता है, 60 मीटर इट इज गिवन. ओके, इसलिए हम डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं. डिस्टेंस बाई ए इन टाइम t. s इज इक्वल टू u t. u a का कितना लेना है, तो a का u लेना है 20. s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ इंटू a t स्क्वायर. t स्क्वायर और a का साइन है नेगेटिव, so this will be negative. This is the distance covered by A. S covered by A. Now similarly, S covered by B. This is equal to, ये 0 से स्टार्ट करता है. अगर ये 0 से स्टार्ट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? So 0 ut plus half A t square. This is the distance covered in this direction. ठीक है, उस डायरेक्शन को यहां साइन के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि हम इसको देख रहे हैं. अगर आप साइन बोलेंगे कि सर इसका a इस तरफ है, we should take it as minus a, then the distance will also be minus s. So this will be minus s, minus a, that will be cancelled. Again we will get this. Okay, so we will go by diagram. ये यहां से t में इतना दूर आया और ये यहां से t टाइम में इतना दूर गया. एंड नाउ यू कैन मेक आउट दोनों का सम कितना होना चाहिए. 20t माइनस 5 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस प्लस 5 अपॉन 2t स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 60. ये टोटल डिस्टेंस आ गया एंड दिस गिव्स यू 20t is equal to 60 and t is equal to 3 seconds. Okay, so the two cars will cross each other after time 3 seconds. Our right option is B. फिर से कैसे बनाया हमने? स्पीड टाइम ग्राफ. ये कभी मत सोचिए इस ग्राफ को देखकर कि 2 सेकंड में दोनों आपस में मिलेंगे. क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है.
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए इससे आपको डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज गिवन बाय डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस बाय b ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों का हमने लगाया, a हमको चाहिए था, a हमने ग्राफ से निकाला कि इसका पहले वाले का a 4 सेकंड में -5 है, दूसरे का a +5 है। ओके, दैट यू कैन मेक आउट वेरी वेल। उस तरह से इसको बनाया एंड दिस इज ऑप्शन इज बी। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल। एक्सेलरेशन टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है एक्सेलरेशन कम होते जाता है। ये जो फिनोमिना है ये आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है, रादर स्कूल में नहीं पढ़ा है। कौन सा फिनोमिना? वेरिएबल एक्सेलरेशन। हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी बदलती है और वो वाले न्यूमेरिकल बनाए हैं जिनमें एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, पर यहां पर एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, हर चीज इसमें बदल रही है। ओके, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना कि वो चाहते क्या है। देखिए, एट व्हाट टाइम, हमको आंसर टाइम में देना है। द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन है, कभी ये एक्सेलरेशन 10 है, कभी 9 है, कभी 8 है, कभी 5 है, और जब तक एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो वापस अपनी वेलोसिटी पे कैसे आएगा? इनिशियल वेलोसिटी पे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका एक्सेलरेशन उल्टा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या इस ग्राफ में हमको दिखता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? तो आंसर है यस, नेगेटिव होगा। यहां पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव, 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 0 और उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव। तो 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। पर पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम भी होती है तो क्या बॉडी वापस मुड़ जाएगी? आंसर है नो, स्लो होती जाएगी, पर जाएगी उसी डायरेक्शन। एनीवे, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि वापस जाते 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 उसकी अपनी वेलोसिटी कब आएगी। तो इसके लिए बनाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि AT ग्राफ्स को आप VT ग्राफ में कन्वर्ट करिए, VT ग्राफ में कन्वर्ट करिए, एंड बाय प्रैक्टिस यू कैन डू इट वेरी वेल। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, VT ग्राफ। देयर इज ए पर्टिकुलर वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम। ये वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद कुछ बढ़ जाएगी, क्यों? उसका एक्सेलरेशन 10 है, ये यहां से 10 बढ़ गई। 2 सेकेंड बाद 10 तो नहीं बढ़ेगी, पर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम 8, लेकिन फिर भी बढ़ गई, फिर भी बढ़ गई। उसके बाद 4 सेकेंड जब पहुंचते हैं तो उसका एक्सेलरेशन बंद हो जाता है, तब तक वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और 4 सेकेंड में जाकर वो ऐसी हो गई, ये सेम वेलोसिटी। 4 सेकेंड शुरू में स्लोप 10, बाद में स्लोप 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। क्यों 0 स्लोप? क्योंकि एक्सेलरेशन 4 सेकेंड में कितना हो गया? 0। अब उसके बाद एक्सेलरेशन रुकता नहीं है, अब ये बढ़ता जाता है। अगर ये बढ़ता जाता है तो वो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी को कम करेगा, इस वेलोसिटी को कम करेगा, और ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन का स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप उतना ही है। तो जिस रेट से इसने वेलोसिटी को बढ़ाया है उसी रेट से इस वेलोसिटी को कम करते जाएगा। ओके, उसी रेट से उस वेलोसिटी को कम करता जाएगा। एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर 4 सेकंड में ये यहां पहुंचा है तो यहां कब पहुंचा होगा? सोचिए,
इसकी सिमेट्री आपको बताती है कि फिर से ये इस लेवल पर कब आ जाएगा, अगले 4 सेकंड में 4। तो टोटल टाइम शुरू से कितना बीता, 8 सेकंड। सो अवर आंसर इज 8 सेकंड, दैट इज ऑप्शन सी। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, तो उसके मीनिंग को समझिए। ये हमको दिया इसीलिए जाता है कि हम ग्राफ को देखकर उसका मीनिंग समझ सकते हैं कि नहीं। फिर से देखिए, यहां से यहां तक ये क्या दिखाता है, पॉजिटिव। इसके नीचे क्या दिखाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 4 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहां से कम होती जाएगी, यहां से नहीं, यहां से कम होनी शुरू हो गई। और होते 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 उतना ही देर सिमेट्री से इसको लगेगी जितनी देर पढ़ने में लगे थी। सो आंसर विल बी 8 सेकंड। कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं। विद दिस ग्राफ यू कैन मेक इट। ओके, द स्ट्रीट कार मूव्स रेक्टिलिनियरली फ्रॉम स्टेशन ए to the station B. ये स्टेशन A, स्टेशन B, straight line motion. With acceleration varying according to A is equal to B minus Cx. Acceleration, और इस acceleration की वैल्यू है B minus Cx. इसमें स्पेशल क्या है, what is special in this? The speciality in this is that acceleration is not uniform. If the acceleration is not uniform, then what type of acceleration it is? Answer, it is variable acceleration. Variable acceleration क्या होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, चेंज होगी। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव है, हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे कैलकुलेशन के मेथड्स भी बदलेंगे। एनीवे, हमको क्या कैलकुलेट करना है, B and C are constant, x is the distance from station A. The distance between two station and maximum velocities are as under. दो क्वांटिटीज हमको कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। A और B के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, और A एक्सेलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमको ये फैसला करना है कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द टू। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ए स्ट्रीट कार मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए, तो हम ये मानते हैं इनिशियल वैल्यू 0। ओके, शुरू में इसका एक्सेलरेशन कैसा है, तो आंसर है A इज इक्वल टू B माइनस CX। इससे क्या क्या होगा, देखिए, when x is equal to 0, x is equal to 0. When x is equal to 0, then x is equal to 0, then A is equal to B. Means A has certain positive value B. यानी एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड B है, तो उससे ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, जब ये एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो बढ़ बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो यहां हम इसका ग्राफ बनाते हैं। शुरू में एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी ये बढ़ेगी, और जब ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन से बढ़ती है तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें कुछ पोर्शन माइनस हो जाएगा, यानी v यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, यानी इसका स्लोप कम होता जाएगा। स्लोप क्या दिखाता है वीटी ग्राफ में,
तो आंसर है वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो स्लोप भी यूनिफॉर्म होगा, और अगर एक्सेलरेशन कम होता जाएगा तो स्लोप भी कम होता जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो ये स्लोप कम होता जाएगा, एंड दिस विल गो लाइक दिस 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 दिस। ऐसा होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कम होगा जीरो। तो हमारा आंसर है, यहां से देखते हैं एक्सेलरेशन को अगर जीरो कर देंगे तो दिस इज b माइनस सी एक्स एंड दिस गिव्स अस सी एक्स इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू b अपॉन सी। तो जब x की वैल्यू b अपॉन सी हो जाएगी, x की वैल्यू b अपॉन सी हो जाएगी तो a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो ये वेलोसिटी अभी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ये स्ट्रेट हो गया। उस समय x की वैल्यू हमको पता है कितनी? b अपॉन सी, b अपॉन सी। तो जब x की वैल्यू b अपॉन सी है उस समय यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहां पर शुरू में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? प्लस b, और यहां पर एक्सेलरेशन जीरो, उस समय x की वैल्यू b अपॉन सी है। ये वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब उसके बाद क्या होगा? x और बढ़ गया, x और बढ़ते जा रहा है। जब x और बढ़ जाएगा, b अपॉन सी से भी बढ़ जाएगा, तो ये निगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम लार्जर। अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। किस रेट से कम हो रही है? तो आंसर है वही एक्सेलरेशन है, b माइनस सी एक्स। जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और होते 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 फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वेलोसिटी बढ़ते गई थी, जीरो से बढ़कर इतनी हो गई, और यहां से फिर वापस आएगी एंड इट विल बिकम जीरो। बाय द रूल ऑफ सिमेट्री वी कैन से कि अगर ये वाला डिस्टेंस b अपॉन सी था तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? b अपॉन सी। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 2b अपॉन सी। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि b अपॉन सी में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी, उसके बाद एक्सेलरेशन उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन फिर से वेरिएबल है, सेम एक्सप्रेशन है, इसलिए वेलोसिटी को जीरो होने में सेम टाइम लगेगा, सॉरी सेम डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट और आगे गया, यहां से यहां तक b अपॉन सी गया, तो वेलोसिटी कैसी हो गई? मैक्सिमम। फिर यहां से उतना ही डिस्टेंस और जाएगा b अपॉन सी, तो फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। v जीरो, v मैक्सिमम, v इज इक्वल टू जीरो। तो अब देख लीजिए कितना डिस्टेंस हो गया, b अपॉन सी यहां तक, b अपॉन सी और आगे, तो ये पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई? 2b अपॉन सी। वेलोसिटी फिर से जीरो। इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया, यहां पर आकर वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई। ओके, अब इसके बाद हमको निकालना है कि ये x का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से देखिए, यहां तक x का डिस्टेंस कितना आया? 2b अपॉन सी। तो यहां पर जाकर फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हमारा पहला आंसर आया x इज इक्वल टू 2b अपॉन सी व्हेन वेलोसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। हमने तो ये निकाला कि वेलोसिटी जीरो हो गई। बात यह है कि जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसने चलना बंद कर दिया, रुक गया, और हमको क्या बोला जा रहा है? कार मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू द नेक्स्ट स्टेशन बी। अगर ये रुक गई तो इसका मतलब बी आ गया, वो वाला पॉइंट बी। इसलिए ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? देखिए, इस चीज को फिर और तरीके से समझिए कि जब बी पर उसको रुकना है तो ए से बी तक चली, बी पे रुकी,
उसकी वेलोसिटी b पे क्या हो गई, 0, और 0 वेलोसिटी होने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, 2v/c। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2v/c when v is equal to 0 at b। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, x is equal to 2v/c। तो अगर ये 2v/c हमारा आंसर आया तो हम चेक करते हैं 2v/c और कहीं नहीं है। अगर 2v/c और कहीं नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। अब आप टाइम बचा सकते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन ए में x की ये वैल्यू आई तो v ये होगा ही होगा, क्योंकि x की और वैल्यू कहीं भी मैच नहीं करती। तो ये वैल्यू b/√c आती है, लेकिन हम इसको चाहे तो निकाल सकते हैं फिर से कि ये वैल्यू b/√c कैसे आती है, और अब उसको देखिए कि ये वैल्यू b/√c किस तरह से आई। Okay, you have seen how we got the how we got the displacement x to b/c. Now we want to find out maximum velocity. In this velocity x graph, when the particle is at a displacement of b/c, the velocity is maximum. This much we have done. ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालनी है। अब वेलोसिटी बढ़ती है x के साथ। वेलोसिटी के हमको दो रिलेशन मालूम है, एक वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन v is equal to u plus at, एक वेलोसिटी बढ़ती है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ और उसका रिलेशन होता है v square is equal to u square plus 2ax, x is the displacement। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे x चेंज होता है वेलोसिटी चेंज होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, इसमें हम किसको यूज करेंगे, तो आंसर है हमारा ग्राफ v और x का है, इसलिए हम v और x वाला रिलेशन यूज करेंगे, v और टाइम वाला यूज नहीं करेंगे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन, if it is a uniform acceleration then we can use this formula, otherwise we cannot use this formula। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जितनी देर तक x डिस्टेंस कवर होगा, फॉर दिस कंप्लीट डिस्टेंस द एक्सेलरेशन शुड रिमेन सेम, then only we can use this formula, otherwise we cannot use this formula। This is for uniform acceleration। पर यहां ऐसा है क्या, आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे x चेंज होता है एक्सेलरेशन चेंज होता है। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू एक x के लिए कुछ और है, दूसरे x के लिए कुछ और है, तो हम लोग ये सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला करेक्ट है तो हम इसमें कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। किस तरह से कैलकुलस की हेल्प लेते हैं, देखिए ये x, एक बहुत छोटा सा x हम लेते हैं यहां पर dx, ये इतना छोटा है कि हम ये मानते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। अगर इस छोटे से x में dx में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, पर ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a dx। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज ए कांस्टेंट। हम ये मान लेते हैं कि हर वेलोसिटी के चेंज के लिए उसके पास शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी, सो दिस u वी विल टेक एज 0। फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां से यहां वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, तो यहां हमने बोला कि वेलोसिटी 0 है और यहां बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 2a dx। फिर यहां वेलोसिटी 0 है, फिर आगे बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 2a dx। एक्चुअल क्या यहां 0 है, नहीं है, पिछली कुछ वेलोसिटी है, पर हमारा अटेंशन किधर है, हमारा अटेंशन है इस वेलोसिटी के डेवलपमेंट को, इस वेलोसिटी के इंक्रीज को काउंट करने के लिए। एंड व्हाट इज दैट इंक्रीज, 2a dx। इसलिए हम u स्क्वायर की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, और यहां पर इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, नाउ
this starts from station A and at station A u is equal to 0, so we take it as 0. So v square कहीं भी हमको कैसे मिलेगा? 2a dx का इंटीग्रेशन करके। देखिए 2a dx हमको क्या बताता है? सिर्फ dx में जो वेलोसिटी डेवलप होगी, शुरू से लीजिए जहां u 0 है तो u क्या हो गया? 0। उसके बाद छोटा सा dx बढ़ा, उस dx में वेलोसिटी कितनी हो गई? 2a dx। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a dx। फिर हमने दूसरा dx लिया, फिर तीसरा dx लिया, फिर चौथा dx लिया, हर एक के dx लेके वेलोसिटी का इंक्रीज काउंट करते गए और सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। कहां से कहां तक ऐड करना है dx को? तो आंसर है, हमको निकालना क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर है? तो आंसर है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। उस समय x की वैल्यू कितनी? b अपॉन सी। तो हमको ये इंटीग्रेशन कहां तक करना पड़ेगा? when x इज इक्वल टू b अपॉन सी। स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से, क्योंकि हमने u इज इक्वल टू 0 किया था। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू b अपॉन सी, यहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे 2a dx का, तो हमको क्या मिल जाएगा? b स्क्वायर। नाउ इट इज डन। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2a dx, 2 इज ए कांस्टेंट, इट कम्स आउट। इंटीग्रेशन a dx करना है। a इज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमको दिया है। a इज ए फंक्शन ऑफ x, b माइनस सी एक्स, सो वी राइट इट b माइनस सी एक्स इंटू डी एक्स। मैं दो स्टेप एक साथ कर देता हूं, b dx माइनस सी एक्स dx। तो इस dx का a के दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, b dx सी एक्स dx। उसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स 0 टू b अपॉन सी। दिस इज इक्वल टू अगेन 2, और अब इसका इंटीग्रेशन करिए, दोनों का इंटीग्रेशन। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। दिस विल बी, b इज ए कांस्टेंट एंड x, लिमिट्स b बाय c माइनस c इज ए कांस्टेंट c, एंड x dx x square upon 2. This is integration. You all know x dx has integration x square upon 2, and here we can put the limits. Again b upon c 0. Okay, this is like this. It is equal to 2. Now this will be b upon c, b upon c, so this will turn out to be b square upon c minus 0. Okay, minus. Now x square यहां रखेंगे तो क्या होगा? b square upon c square, b square upon c square, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? b square upon c, b square upon c, और ये 2 as it is. This is done, and here it is. b square upon c, b square upon c. This is 2b square upon c common. अंदर क्या बचा? 1 minus half. 1 minus half is half. This 2 is cancelled. So what we get here is v square is equal to b square upon c. Therefore v is equal to b square का स्क्वायर रूट b और c का स्क्वायर रूट c. तो b upon root c. Do we have any choice? Yes, b upon root c. हमको पहले मालूम था क्योंकि हमने x is equal to 2b upon c निकाला था। फिर भी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये निकलेगी, इस मेथड को याद रखिए। सो आपको कैलकुलस से घबराना नहीं है, जब जरूरत पड़े इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट, एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज मूविंग along a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है
यहां से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, along कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, इसका ये मतलब है कि हम बिना कैलकुलस के तीनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, when the velocity of the particle is 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन के कारण बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते यहां जाके ये हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, जैसे ही ये यहां पर हो जाती है 50, द एक्सीलरेशन इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि एक्सीलरेशन -a हो गया, मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हम ये मानेंगे एक्सीलरेशन उल्टी तरफ हो गया। ठीक है, ये उल्टी तरफ डायरेक्ट हो गया। अब क्या होगा, एक्सीलरेशन इज रिवर्स, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अगेन रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, इसको आप सिंपल ऐसा नहीं बना सकते कि यहां से चली थी तो वेलोसिटी 10 थी, फिर यहां वापस आएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, और 10 आंसर में है। इट्स वेरी टेम्पटिंग बट दिस इज रॉन्ग। सोचिए, जब किसी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है, इसकी वेलोसिटी 50 हो गई है, जैसे ही इसका एक्सीलरेशन उल्टी तरफ होगा तो क्या ये उल्टी तरफ चलना शुरू कर देगी? आंसर है नो, उल्टी तरफ चलना शुरू नहीं करेगी। इसकी वेलोसिटी में नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी। ये वेलोसिटी 50 से 40, 30, 20, 10, 0, ये वेलोसिटी 0 हो गई। अब उस 0 वेलोसिटी से अभी भी एक्सीलरेशन इधर ही लग रहा है, फिर ये चलना शुरू करेगा, और इधर जब चलेगा माइनस एक्सीलरेशन के कारण, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये यहां पहुंचेगा तो कुछ इतनी देर तक इस पर एक्सीलरेशन a लगेगा, तो वेलोसिटी तो बहुत हो जाएगी, वो हमको निकालनी है। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है। यहां से यहां वेलोसिटी बढ़ी है, फिर यहां से यहां तक 0 हो जाएगी, और फिर यहां से यहां बढ़ती जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा a इस डायरेक्शन। अब अगर हमको यहां की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है u प्लस at, और दूसरा फॉर्मूला है u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर टाइम से रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम s वाला रिलेशन लेते हैं कि कितनी दूर तक ये जाएगा। ठीक है, s से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इंसिस्ट करें t से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। मैं s की कोशिश करता हूं, देखिए। ओके, तो यहां से हम शुरू करते हैं। जब ये चलना शुरू होगा, u 10 था और v 50 है, एक्सीलरेशन a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया s1। ये यहां से फिर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन चेंज हो गया, और यहां डिक्रीज होते होते वेलोसिटी 0 हो गई। इस डिस्टेंस को हमने माना s2। s1 में एक्सेलरेशन प्लस a है, s2 में एक्सेलरेशन माइनस a है। तो S1 S2 के क्या रिलेशन हुए वेलोसिटी के साथ निकाल लेते हैं। क्या क्या मालूम है हमको? डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। सो हियर इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u, या मैं डायरेक्ट s का फॉर्मूला लिखता हूं, s1 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज इक्वल टू 2400 एंड दिस 1200 अपॉन a। ये किसकी वैल्यू आ गई? s1 की। अब s2 की वैल्यू ऐसे ही निकालिए, s2 v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर 2500 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस से।
minus minus cancel, and this is 1250. Is it okay? V square minus u square upon 2a. Yes. So this is 1250. Why it was 12? Oh, because of this. 1250 upon a. This is S2. ठीक है? S1, S2. अब जब ये यहां से चलेगा इधर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका? S1 प्लस S2. इन दोनों का एडिशन, दोनों का कॉमन एलसीएम ए, ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट करता है 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। कौन सा फॉर्मूला? अगेन थर्ड फॉर्मूला। सो दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर plus 2a into s. S is how much? 12 and 12, 2450 upon a. This is displacement S1 plus S2. This is S1 plus S2. Now a is cancelled and this comes to v square is equal to 24 to the 48 and 1 49. 4900. So v is equal to plus minus 70. So the velocity here will be 70. Don't bother for minus 70. That is a mathematical solution. So you can take it as minus velocity because it has this direction. You can say it is of magnitude. Only magnitude is 70. Okay, fine. So v is equal to 70. Do we have an answer? Yes. We have the answer here 70. So our correct option is A in this question. Okay. Now let's go to the next. अगला क्वेश्चन देखिए. Displacement x of a particle varies with time t as x is equal to this where a, b, alpha, beta all are positive constants. The velocity of the particle will. अब velocity के बारे में पूछा गया है. Velocity will go on decreasing independent of ड्रॉप टू 0 और गो ऑन इंक्रीजिंग। पर ये चारों चीजें किसके बारे में पूछी गई हैं? वेलोसिटी। अगर ये चारों चीजें वेलोसिटी के बारे में पूछी गई हैं तो हमारे सामने क्या होना चाहिए? हमारे सामने वेलोसिटी का इक्वेशन होना चाहिए। उसको देखकर हम बताएंगे कि वेलोसिटी पर टाइम का क्या इफेक्ट होगा। वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या? एक्स और टाइम का इक्वेशन। तो पहला काम हमारा क्या होगा? इस x यानी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के इक्वेशन को वेलोसिटी के इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। कैसे करते हैं आप सबको मालूम है, दैट इज बाय डिफरेंशिएटिंग इट। सो वी हैव हियर x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t। Okay, a, b, alpha, beta all are positive constants. Okay, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है. We will find velocity which is dx by dt. इसका डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम है. जिनको डिफरेंशिएशन इतना अच्छा नहीं मालूम है वो देखिए इसको किस तरह से करेंगे. a here this is alpha t, so we will make it d by d of alpha t of e to the power minus alpha t, because here e, this quantity is a function of alpha t. So we have done it this way into d by dt of alpha t. This is function of a function. How do we do the differentiation? Okay, minus alpha t, d by dt of minus alpha t plus b constant, no change, e to the beta t. So this will be d by d of beta t of e to the power beta t multiplied by d beta t upon dt. This is equal to, now d by d alpha t of e to the minus alpha t, e to the power anything
will remain as it is, differentiation, so its derivative is e to the power minus alpha t. This you all know, e का कोई भी पावर हो उसका e to the power x, differentiation is e to the power x. So this is e to the power minus alpha t. This is done. Now for this, d by dt of minus alpha t is minus alpha, plus this is d by dt of e to the power beta t is e to the power beta t, ये b वैसा ही रहेगा, into d by dt of beta t is equal to beta. Okay, we'll write it again. माइनस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस a अल्फा e to the power minus alpha t. Minus alpha t means this can come in denominator, e to the power alpha t, plus b beta e to the power beta t. ये हो गया इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हम इसमें से कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं? नो. क्यों? अल्फा बीटा दोनों में है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा नहीं हो पाया, क्योंकि अल्फा भी प्रेजेंट है, बीटा भी प्रेजेंट है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दे, तो भी ये जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इक्वल नहीं हो रहा है. इसलिए ये दोनों तो गए, not there. Now go on decreasing with time, go on increasing with time. Increasing with time or decreasing with time कैसे निकालेंगे? So in differentiation in calculus we have a rule. If we want to see if the quantity, a variable quantity is increasing or decreasing, then we have a system, and that system is differentiate this velocity with respect to time. We will differentiate it with respect to time. उससे क्या होगा? Slope निकलेगा. Slope से क्या होगा? If the slope is positive, then velocity is increasing. If the slope is negative, velocity is decreasing. इसका ये मतलब है डिफरेंशिएशन करने से अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स एक डिफरेंशिएशन और करना है, एंड वी डू इट, दैट इज टू सी द स्लोप वेदर चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव और चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव. वी फाइंड आउट dv by dt. ओके, dv by dt इसका करते हैं. देखिए ये है e टू द पावर अल्फा t, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस अल्फा t, जैसा ये लिखा हुआ था. तो डिफरेंशिएशन के लिए इसकी हेल्प ले लेते हैं, ऐसा एक लाइन में लेते हैं. ओके, कांस्टेंट माइनस a अल्फा, e टू द पावर माइनस अल्फा t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस अल्फा t वैसा ही रहेगा, और माइनस अल्फा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस अल्फा, प्लस b बीटा e to the power beta t will remain e to the power beta t, and differentiation of beta t is beta. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं. this now this is equal to minus into minus is plus a अल्फा. अब इसको नीचे ले आइए, e to the power अल्फा t प्लस b बीटा e to the power b beta square e to the power beta t. Now it is given to us that alpha, beta, a and b all are positive constants. इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, किसी की कोई वैल्यू के लिए क्या आप इसको निगेटिव कह सकते हैं? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. यहां देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आप माइनस यहां क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप ये सोचते हैं कि ये माइनस टी है, इसका क्या हुआ? तो इस माइनस टी का मतलब माइनस नहीं होता, इसका मतलब है डिवीजन. पावर में माइनस का मतलब डिवीजन. अगर हम t को इंक्रीज करते हैं, वेदर दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज,
देखिए अगर आपने टी को इंक्रीज किया तो ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी पर नेगेटिव नहीं होगी, छोटी होगी, इट विल गो टुवर्ड्स जीरो। और लास्ट में जब टी इंफिनिट हो जाएगा ये जीरो हो जाएगी पर माइनस कभी नहीं होगी। और ये आप टी की कितनी भी वैल्यू रखिए पॉजिटिव होगी। सो दिस इज श्योर दैट दिस होल क्वांटिटी हैज बिकम ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड व्हाट इट इज? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? टी के साथ जैसे जैसे टी बढ़ता है वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो v is increasing. So our right option is D. Velocity keeps on increasing. D is the right option. This is how we can do it. And now we go for the next question. Question को देखिए, पढ़िए. Block is dragged on a smooth plane with help of a rope which moves with velocity v. The horizontal velocity of the block is this. ये रोप को हम यहां से खींच रहे हैं। जब यहां से खींचेंगे तो ये रोप भी इधर जा रही है। एक सेकंड में ये रोप कितनी आगे जाती है? v वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में अगर ये रोप v आगे जाती है तो ये भी इधर कितना छोटा हो जाता है? v। लेकिन ये वेलोसिटी हमको नहीं चाहिए। जब ये छोटा होगा तो ये तो इसके साथ ऊपर नहीं उठेगा, इसके साथ ऐसे चलेगा, ये यहां चलेगा। तो ये वाला डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा यानी इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ। ये वेलोसिटी अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकती है क्योंकि इसका एंगल लगातार बदलता चला जाएगा। तो एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट से होती है वो ये है कि हम ये बनाते हैं, ये वेलोसिटी v है, ये एंगल अल्फा है, तो इस v के हमने दो कंपोनेंट किए, ये कंपोनेंट हुआ v cos अल्फा और ये कंपोनेंट हुआ v sin अल्फा। तो ये ब्लॉक आगे बढ़ गया किस वेलोसिटी से? v sin अल्फा एंड देयर इज ए v sin अल्फा। रॉन्ग आंसर तो पहले रहेगा, तो ये v sin अल्फा इज ए रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये यहां पर पहुंचता है अल्फा चेंज हो जाएगा। ये यहां आया, ये अल्फा की वैल्यू चेंज हो गई। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए ये आंसर ठीक नहीं। फिर हम कैसे आंसर निकालेंगे? देखिए किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। इसका आंसर निकालने के लिए पहले हमको ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं जो इसमें कांस्टेंट हो, जो इसमें कांस्टेंट हो। आंसर इज यस। फिर से मैं इस डायग्राम को बनाता हूं। This angle is alpha. This is certain length. This length let us say L. और ये यहां पुली से ऐसे जा रही है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है। जब ये इधर बढ़ती है v वेलोसिटी से तो ये इस तरफ आगे बढ़ता है। ये इधर v से नहीं बढ़ता। अगर ये v से इधर जाता तो हम इसका ये कंपोनेंट ले लेते v cos अल्फा, हमारा आंसर आ जाता, या v sin अल्फा, सॉरी इधर का कंपोनेंट v sin। पर ये v इसकी वेलोसिटी इस तरफ की नहीं है, ये तो इधर ही जाता है। तो इसके लिए इस मोशन में जब ये यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, क्या चीज कांस्टेंट है उसको ढूंढिए। तो आंसर है कि ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ जब ये यहां पर था तो भी ये लेंथ इतनी है, जब ये यहां आ जाएगा तो ये लेंथ बदल गई L, ये वाली लेंथ X ये भी बदल गई, पर ये लेंथ अगर हम इसको h मान लें तो h कैसी है? सेम। यहां पर भी h सेम है, यहां पर भी h सेम है, x बदल रहा है, L बदल रहा है, ये 90 डिग्री। तो हमारे पास इन तीनों का आपस का एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज x²
स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, और एक्स की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी कितनी होती है? आंसर है dx by dt। अगर x की वेलोसिटी dx by dt होती है तो हम x के इक्वेशन को ऐसा लिख लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2x dx by dt is equal to 2l dl by dt minus 2h dh by dt। नाउ h इस पूरे मोशन में h तो कांस्टेंट रहता है। अगर h कांस्टेंट रहता है तो dh by dt कितना होगा? 0। दिस विल बी 0। सो हियर व्हाट डू वी हैव? 2x dx by dt is equal to 2l dl by dt। नाउ dl by dt ये ऐसा ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो dl by dt की वैल्यू क्या है? v। फिर से ये l इधर, ये v वेलोसिटी है, तो ये रस्सी, ये स्ट्रिंग इधर जा रही है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? v। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड l? v is equal to dl by dt। This, so this dl by dt we will place as velocity v. Oh, dx by dt is velocity of this block. For a rope which moves with velocity v, the horizontal velocity of the, इसका नाम हम दे देते हैं vh। vh। Okay, so vh is equal to, this 2 is cancelled, x square 2h dh by dl। vh is equal to v and this is l upon x, l upon x। Now in this diagram, what is l upon x? This we can write as v upon x upon l। Here what is x? What is l? X upon l with respect to alpha। If this is alpha, then this is also alpha। For alpha, x upon l is perpendicular upon hypotenuse, this is sine alpha। x upon l is sine alpha, so this is v upon sine alpha। So v horizontal which is dx by dt is v upon sine alpha। इसमें आप बोलेंगे कि क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा? हो रहा है। हर बार जब इतना x है तो इतना l है। जब x छोटा हो जाएगा तो l भी छोटा हो जाएगा। तो x अपॉन l हमेशा किसके बराबर रहेगा? साइन अल्फा के बराबर रहेगा। अल्फा कीप्स ऑन चेंजिंग, होने दीजिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? v horizontal is equal to v upon sine alpha, which v is this। Now do we have this answer here? Answer is yes, v upon sine alpha c। So our right option is c। ठीक है, फिर से याद रखिए इसकी वेलोसिटी इस तरफ v नहीं है, इसलिए हम इसके दो कंपोनेंट नहीं कर सकते। ये इधर ही जाता है, इसलिए हमको ये कंपोनेंट ही चाहिए, ये वाली वेलोसिटी ही चाहिए। और उसका ये तरीका याद रखिए। ये तरीका हमको कहां से मिला? हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें आप वो क्वांटिटी ढूंढिए जो एक नंबर कांस्टेंट चलता है थ्रू आउट द मोशन, और उसी के टर्म्स में दूसरी चीजों को लाइए। ये कांस्टेंट रहता है h। इसलिए अब आप देखते हैं dh by dt ने 0 होके हमारा काम आसान कर दिया, और इस तरह से हमको इसका राइट ऑप्शन मिला। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is again a very simple question. A stone is thrown vertically upward with certain initial velocity. Distance traveled in so much time. तो हमारे पास क्या क्या है? Initial velocity है u, distance traveled, distance निकालना है हमको, time हमको दिया है, और acceleration नहीं मालूम है, लेकिन उसके लिए हमको एक शब्द दिया, एक वर्ड दिया है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड गिव्स अस
a figure, and that is G. Minus G, U is upward, so A is minus G. Okay, these are the things this we have to find. You know the equation, S is equal to ut plus half at square. Only thing we have to put the values here. U is given as V naught T plus half. U into T, sorry, T is again given to us. T, how much is T? 1.5 V naught upon G. 1.5 V naught upon G plus half, acceleration is minus G, and T square. T square is 1.5 V naught upon G square. Okay, now we have to do only mathematics. V naught square, common. G, this is G square, 1G is cancelled, 1G remaining denominator, common. Okay, out. What remains inside is 1.5 plus into minus 1.5 square, that is 2.25 upon 2. 2.25, we can say 3 upon 2 into 3 upon 2, that is 9 upon 4, and this is 2. This 1.5 we can write as 3 upon 2. Because fractions are given, I am also converting decimal to fraction. Now it has become very simple. G, and this is 4 2s are 8, 2 4s are 8, 12 minus 9, 3 upon 8, V naught square upon G. 3 upon 8, yes, here is the option B. So we have it, option B. Okay, this was not required, but since V naught upon G was given, I was interested to show you this one. Okay, now let's go to the next question. See the next question. The displacement x of a particle is given by equation x is equal to 1 minus t square. X is displacement. The correct representation of the motion is, ये चार ग्राफ हमको दिए। पहले अपने लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इक्वेशन के साथ ग्राफ को जब आपने कंपेयर करना है तो दो बड़ी सिंपल चीजें रहती हैं। 3 स्टेप उसके मैंने बताए थे। पहला, एक बार एक वेरिएबल को जीरो करिए, दूसरे की वैल्यू देखिए, चेक करिए। दूसरी बार दूसरे वेरिएबल को जीरो करिए, पहले की वैल्यू देखिए, फिर ग्राफ को चेक करिए, कुछ ग्राफ रिजेक्ट होते जाएंगे। और तीसरा, एक बार डिफरेंशिएट करिए और या डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, जो भी आप करना चाहें करके उसके स्लोप को देखिए। डिफरेंशिएट करके आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। 3 स्टेप से आप बाकी सारी चीजें रूल आउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले x और t के बीच में ग्राफ है। When t is equal to 0, what is the value of x? t is equal to 0 करिए, x is equal to 1। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, a, b, c, d, रूल आउट करना है। When t is equal to 0, x is not 0, x is 1। यहां पर क्या है? When t is equal to 0, x is equal to 0। जबकि हमने देखा t is equal to 0, x is equal to 1, so this a is ruled out। ये खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। When x is equal to 0, नहीं, और आगे t को और आगे बढ़ाते हैं। When t is equal to 1, फिर देखिए t is equal to 1, तो x कितना हो जाएगा? x is equal to -1, so this is -1। If t is equal to 2, x is equal to 2 2s are 4, 4 and 2 6, -5,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है x की वैल्यू निगेटिव में बढ़ते जाती है। इसमें देखिए ये जैसे जैसे t बढ़ता है x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आंसर है x पॉजिटिव है, या तो सेम रहता है या पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। जबकि हमने अभी निकाला कि x को 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, शुरू में भले माइनस में हो, when t is equal to 0 तब तो पक्का प्लस था, तो 0.1 होगा तब भी प्लस होगा, 0.2 होगा तो भी प्लस हो सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए इन दोनों में t टाइम के बाद नेगेटिव, t टाइम के बाद नेगेटिव, लेकिन यहां पर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही रहता है, जो कि इससे गलत हो रहा है। सो b इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास ये बचा b और d, सॉरी मैंने गलत कर दिया, c ऑप्शन इज रॉन्ग। अब b और d ये दो ऑप्शन बाकी हैं, दोनों में x की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम में 0 हो जाती है और उसके बाद अगर आगे बढ़ेगा तो माइनस भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम में 0 हो जाएगी, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये दोनों मिलाकर जब 1 होंगे तो x 0 हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। इसलिए b और d दोनों में हमको एक ऑप्शन चुनना है। कैसे चुनेंगे, देखिए ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, ये स्लोप ऊपर जा रहा है, ये स्लोप नीचे जा रहा है। x का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t, आंसर है डिफरेंशिएट करके dx बाई dt करके। हमेशा xt ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया dx बाई dt क्या दिखाएगा, चेंज इन x, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको हमने किया 0 -1 -2t -1 + 2t, दिस इज dx by dt। और अब बताइए जब dx by dt ये स्लोप चेंज इन dx का साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि t कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये माइनस इस क्वांटिटी को हमेशा क्या बना देगा, माइनस। आप ये नहीं कह सकते कि अगर t इज इक्वल टू -1 हो गया तो t इज इक्वल टू -1 नहीं होता, टाइम है, टाइम हमेशा पॉजिटिव आगे बढ़ता है, तो t इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस माइनस विल मेक इट नेगेटिव, सो dx by dt इज नेगेटिव, दैट मींस x इज चेंजिंग डाउनवर्ड, स्लोप नीचे। इन दोनों में इसका स्लोप देखिए ऊपर, इसका स्लोप नीचे, सो विच इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। फिर से तीनों चीजें मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, जब भी आपको ग्राफ चॉइस करनी हो, एक बार t को 0 करिए, एक बार x को 0 करिए और एक बार स्लोप देखिए। ये तीन चीजें आपको तीन ग्राफ रूल आउट करा देंगी, फोर्थ में मैच करेगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A point moves in a straight line, displacement x is given by this and find out its acceleration। हम सबको मालूम है डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन डबल डेरिवेशन से बनता है, दो बार डिराइव करना है, सो इट्स ओनली ए मैथमेटिकल क्वेश्चन and has nothing much to do with physics, except we know the principle कि acceleration if we want by displacement, then we have to do the differentiation twice. Okay, let's do it. So this is x square is equal to t square plus 1. Let us differentiate it with respect to time. So this will be d by dx of x square is dx by dt, and dx by dt is 2x. So x square का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन dx by dt. This will be 2t and into 1 and this will be 0.
So we have here dx by dt, and dx by dt is velocity. 2 is cancelled and this is t upon x. Velocity is t upon x. Now we want to differentiate it once again, so that dv by dt is equal to acceleration. पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है t और x. x is a function of t, t is a function of x, but when we place the value तो यहाँ पर स्क्वायर आता है. तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए, इजी करने के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि इसको आप ऐसे लिखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है. अदरवाइज आप t रखने जाएंगे तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट आपको डिफरेंशिएशन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू रखने जाएंगे, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1. आई वांट टू अवॉइड दैट, सो लेट अस स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स दिस, एंड नाउ दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर को क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, that is x to the power minus 2. This is v square is equal to. Now differentiate both sides. Differentiate. So this will be 2v. 2v और v का differentiation dv by dt. With respect to t कर रहे हैं. With respect to t. Okay. Is equal to 1 का differentiation 0. We will not write it. Minus. x to the power minus 2 का डिफरेंशिएशन, that is minus 2x, और x का डिफरेंशिएशन again dx by dt. This is equal to minus into minus plus 2 cancel, minus cancel. What do we get here? v dv by dt. dv by dt क्या है, एक्सेलरेशन जो हमको चाहिए. इस v को हम इधर ले जाएंगे. What is dx by dt equal to? dx by dt is equal to v, and this is v, this is cancel. Now what do we get here? Acceleration. Sorry, मुझसे गलती हो गई. x to the power minus 2 का डिफरेंशिएशन, पावर minus 1, minus 2 minus 1 is equal to minus 3. This dx by dt. Okay, so v is cancelled by dx by dt. dv by dt is a, and here we get x to the power minus 3. This is our answer, but here they have given it in the different form. So a is equal to 1 upon x to the power 3. This is value of acceleration. What do we get? So here we close our questions. We have done a lot of numericals in last 4 lectures of one dimension, and this is such a thing, kinematics, which will keep on coming in all the next chapters. In 2 dimension we are using again kinematic equations, but in 2 dimensions. In laws of motion again we will find acceleration, and with that acceleration we are doing numericals of kinematics. So kinematics we can never leave. It will always be there, whatever is the chapter. Okay, so see you again in the 2 dimension classes. Thank you.